الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین ولتکبروا اللہ ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ الحمدللہ رمضان شریف کی آخری ایام، آخری ساعتیں چل رہی ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رمضان شریف کی آخری شب اور آخری رات آتی ہے، آخری جمعہ کی رات آتی ہے، تو اول رمضان سے لے کر آج تک جتنے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، اس تعداد کے برابر آخری جمعہ میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جہنم کے حالات، اس کی قسمیں، اس میں ہونے والے عذاب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کل اور پرسوں میں آپ لوگوں کے سماعت کے حوالے کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ گفتگو آج اسے مکمل کروں گا، لیکن مختلف جگہوں سے نماز عید کے حوالے سے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، فون کیا ہے۔ ان لوگوں کے تسلی کے خاطر نماز عید کے مسئلے کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ الحمدللہ مفتیان اکرام بریلی شریف سے، اسی طرح کچھوچا شریف سے، اور اسی طرح الجامعۃ الاشرفیہ سے، اور ہندوستان ہمارے کرناٹک کے مختلف اداروں کے مفتیان اکرام اس کے حوالے سے مکمل گفتگو کر چکے ہیں، ہماری وہ رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ کرناٹک میں دارالعلوم شاہ جماعت کے شیخ الحدیث مفتی مظہر الحق صاحب قبلہ، اسی طرح ہمارے سمنگلور کے اطراف و اکناف میں حنفیوں کا ایک ہی مشہور ادارہ ہے، سنی دارالعلوم محمدیہ موڈبیدری۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے مفتیان اکرام اپنی قوم کو صحیح رہنمائی کر رہے ہیں۔ نماز عید کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ فون ہے کہ ہم اپنے گالے میں، اپنے باغیچے میں، اپنی فیکٹری میں ہم 15، 20، 25 لوگ جائیں گے، وہاں جا کر ہم نماز عید ادا کریں گے۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر عید کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس طرح کے شک و شبہات کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینی جذبے کو سلامت رکھے، اسی طرح دین کے ہر مسئلے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید واجب ہے، اس لیے اس کے لیے وہی شرائط ہیں، وہی کنڈیشن ہے جو جمعہ کے واسطے ہیں۔ صرف خطبے کا ایک شرط ہے، جمعہ کے دن خطبہ واجب ہے اور یہاں سنت ہے۔ تو جو شرائط جمعہ کے لیے ضروری ہیں اور وہی شرائط عید کے لیے بھی ضروری ہیں، تو آج حکومت کی وجہ سے جو قانون لایا گیا ہے، حکومت کی طرف سے جو شرائط ڈالے گئے ہیں، اس کے پیش نظر ملک کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے علماء کرام نے متفقہ ہو کر یہ فتویٰ دیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جتنے لوگوں کی اجازت حکومت کی طرف سے ہے اتنے لوگ جمعہ ادا کریں،
बक़िया लोग उसकी जगह ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें। इसी तरह ईद के लिए भी जितने लोग पुरअमन तरीक़े से जाकर ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं वो लोग ईद की नमाज़ पढ़ें, अदा फरमाएँ। और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो फ़िक्रमंद ना हो, वो टेंशन में ना आए, वो गमज़दा ना हो। हमारे पास इस्लाम है जो हर मसले का तसल्ली बख्श जवाब है। तो वहाँ आप पर ईद की नमाज नहीं है, उसकी जगह आप शुक्राने की 4 रकात नमाज चाश्त पढ़ें। 2 रकात पढ़ लें तभी चलेगा, बेहतर है कि आप 4 रकात नमाज चाश्त पढ़ लें, जिसे सलातुल दुहा कहा जाता है। और छुप छुपा कर 25 लोग 30 लोग जाएंगे, वहाँ जाके नमाज़ें पढ़ेंगे, तो याद रखिए इस्लाम नहीं पाया जा रहा है, तो वहाँ ईद की नमाज नहीं होगी। खुदा ना करे अगर आपने कहीं पढ़ ली, इत्तला मिली, अगर नमाज के दरमियान किसी को छींक भी आए, खांसी भी आई, तो लोग एक तरह के शक में पड़ जाते हैं। इस वजह से परहेज़ करना ही हमारे लिए बेहतर है। इलावाज़ी सदक़े फ़ित्र, ये हमारे अहनाफ के लिए, हनफियों के लिए वाजिब है। हर साहिब इस्तिताअत पर अपने घर में जितने अफराद रहते हैं, एक दिन के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है। जो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करता है उसके तरावी और उसके नमाज़ें मुअल्लक़ रहती हैं। इसका टाइम भी नमाज ईद को जाने से पहले अदा करके जाना बेहतर है। अगर नहीं तो नमाज ईद के बाद भी अदा किया जा सकता है। सदक़े फ़ित्र 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत आप ज़रूरतमंदों पर जो फ़ितरा लेने के जो हक़दार हैं आप उनको दें, अदा करें। इसके तफसीली मसाइल इस छोटे से वक्त में मुश्किल हैं, इसलिए अपने घर में जितने अफराद रहते हैं उन तमाम पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। उसके अलावा ईद के दिन जो काम सुन्नत हैं, आप वो काम जैसे कि नहाना, मिसवाक करना, सुरमा लगाना, नए या पाक व साफ़ कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें आप ईद के दिन बजा लाएँ, करें। अल्लाह ताला सुन्नतों पर अमल करने का सवाब हमें अता फरमाता है। ईद की रात यानी पहले वाली रात, जिस तरह 27वीं रात 26 जाके 27वीं रात में जागते हैं लैलतुल क़द्र में, इसी तरह ईद की रात भी जागना, इबादत करना बहुत बरकतों वाला, बहुत आपके लिए सवाब का सबब बनता है। हदीस पाक का मफ़हूम है जो शब ईद जो जागते हैं, इबादत करते हैं, उनका दिल उस दिन नहीं मरता है जिस दिन औरों के दिल मर जाते हैं। तो शब ईद में जागना ये बेहतर है, मुस्तहब है। जागें और जाग कर इबादत करें। उसके बाद सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही ये 300 मरतबा पढ़ें। पढ़कर अपने ख़ानदान से जो अफराद अपने आबा व अजदाद में से इंतकाल फरमा चुके हैं उन सब के लिए इसका सवाब पहुँचाएँ। उनकी क़ब्रों में इस तस्बीह की बरकत से 1000 नूर उन्हें दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कल बुज़ुर्गान दीन की ईद कैसी होती थी उसके हवाले से इंशाअल्लाह मैं कल आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। इन ज़रूरी मसाइल पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि दूसरे मसलक के एतबार से लोग अपनी ईद की नमाज़ घर में पढ़ रहे हैं। यहाँ हमें हनफियों को भी इजाज़त दीजिए कि हम भी ईद की नमाज़ अपने घर में पढ़ें। याद रखिए ऐसा करने की इजाज़त नहीं है।
आप लोग ईद की नमाज अपने घर में या अकेले या कहीं छुप कर अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें शरीयत के मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हमने हदीस का मफ़हूम बताया था कि जहन्नम, अल्लाह उसके अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। उसका आँखों देखा हाल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाया है, बताया है। अल्लाह कब्र के अज़ाब से और महशर व जहन्नम के अज़ाब से हम सब को बचाए, हमारी हिफाजत फरमाए। सत्र औरत के हवाले से बताए थे कि जो औरत अपने घर में खुले बाल फिरती है, रहती है घर के अंदर, उसे सरकार फरमाते कि मैंने देखा कि उसे जहन्नम में बालों के बल लटकाया गया है और उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा है। तो बताइए, जब घर के अंदर बेपर्दगी करने में, घर के अंदर बाल खोल किस तरह से घूमने में इस तरह की वईद है, तो बाहर जो बहुत सारी ख़वातीन आज बाहर खुले बाल डाल के घूम रही हैं, फिर रही हैं, उनके अज़ाब का आलम क्या होगा, इसे हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, आप घर में अपने उन रिश्तेदारों के साथ जो मुहर्रिम जैसे वालिद साहब हैं, भाई साहब हैं, चाचा हैं, इनके लिए जैसे ये हाथ के पंजे हैं, ये चेहरा, ये पाँव के पंजे, ये सत्र औरत में नहीं है कि नमाज की हालत में इनका छुपाना ज़रूरी नहीं है। अकेले में पढ़ें, चाहे आप आम में पढ़ें, इसके अलावा सारे जिस्म को औरतों के लिए छुपाना सख्त ज़रूरी है। इसलिए ऐसे बारीक कपड़े, ऐसी बारीक ओढ़नी, ऐसा बारीक दुपट्टा जिसको ओढ़ने से बाल छलकते हों, बाल की स्याही दिखती है, बाल चमकते हैं, ऐसी ओढ़नी अगर कोई औरत पहन के नमाज़ पढ़ती है तो उसकी नमाज नहीं होती है। इसके अलावा औरत का सारा जिस्म ये औरत है। औरत का माना है छुपाना, तो मर्द का औरत कहाँ तक है? मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये औरत है, इस छुपाने की चीज़ है। अगर कोई इसको नहीं छुपाता है तो उसे भी जहन्नम में जाना पड़ेगा, उसका अज़ाब चखना पड़ेगा। ख़ास कर मर्द हजरात भी एहतियात करें, लुंगी बांधने वाले, और बहुत सारे ऐसे होते अपने घर के अंदर, क्या है वो चड्डियों के साथ भी थोड़े लोग रहते हैं। इन अफ़ाल से हम सबको बचना चाहिए। इसके अलावा दूसरी खातून जो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसे हमने देखा है कि जहन्नम में ज़बान दराज खातून है, जो अपने शौहर के साथ ज़बान दराज करती हैं, बार बार बच्चों का गाली गलोच करती हैं, उसे भी जहन्नम में सख्त अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। तीसरी औरत जो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मुहर्रिमों से, दूसरे मर्दों से ताल्लुक़ात कायम करती है। चौथी वो औरत है जो सरकार फरमाते हैं उसे मैंने जहन्नम में देखा है, वो है गुस्ल जनाबत में ताख़ीर करने वाली ख़वातीन हैं। यहाँ तक इतना ताख़ीर करें, चाहे मर्द हो या औरतें, कि फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए, ये हराम है, यह अज़ाब का सबब बनता है। इसी तरह पाँचवें हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि चेहरा सूअर का है, जिस्म गधे का है, तो पूछे वो कौन है, तो फरमाते हुए वो चुगली और गीबत करने वाली ख़वातीन है। इस तरह छठी औरत को आपने देखा कि वो इस हालत में कुत्ते की शक्ल में वो जहन्नम में जा रही है, उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है, तो फरमाते हैं वो है हसद करने वाले और एहसान जतलाने की वजह से उनको इस तरह का अज़ाब दिया जा रहा है। तो इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम ज़रूरी मसाइल पर सख्ती के साथ आप
عمل کریں۔ جہنم کا عذاب انتہائی دردناک ہے، شدید ہے، اس سے بچنے کی سکت اور طاقت کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جب جہنم کا تذکرہ آیا تو مختصر طور پہ میں نے جہنم کے عذاب کا ایک تذکرہ کیا ہے۔ خاص کر عورتیں الحمدللہ ہمارے گھر کی آن ہوتی ہیں، شان ہوتی ہیں، عزت و آبرو ہوتی ہیں، انہیں پورے گھر کا بوجھ کیا ہے کاموں کا جن کے سروں پہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں اگر وہ خواتین سختی کے ساتھ شریعت کی احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں اونچے اور اچھے محلات سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت پر سختی سے چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن شریعت کے دائرے میں رہ کر عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔